ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में नजर आ रहा कि सुप्रीम कोर्ट हरी झंडी इस आरक्षण को मिलती नजर आ रही है। तो 3 जज पक्ष में है ईडब्ल्यूएस आरक्षण की, जबकि एक दल। तो ये देखिए आंकड़ा एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, सही आंकड़ा ये बताया जाता है कि कुल 5 जजों की एक बेंच है जो इस पर विचार कर रही है। इनमें 4 पक्ष में है और 1 विपक्ष में है। तो 4 पक्ष में है और 1 विपक्ष में है। And suggested measures, including the feasibility of reservations, to improve their law. The report published in July 2010 is based upon the census of 2001 and later surveys. The statistics NSSO 2004-2005, which the report is based on, disclosed that in all 31.7 crore people were below the poverty line, BPL, of which the scheduled caste population was 7.74 crores. That is 38% of the total of the scheduled caste population in the country. Scheduled tribe population was 4.25 crores. That is 48.4% of the total scheduled tribes of the country. 13.86 crores of OBC population, which was 33.1% of the total OBCs, and 5.85 crores of the general category, which is 18.2 the total general category. These facts established that the bulk of the economically weaker sections of the society belong to the classes described in Articles 15.4 and 16.4. I pass on to question number 2, which is that unaided private institutions, including those imparting professional education, cannot be seen as standing out of the national mainstream. As held in Pramati and Society for Unaided Private Schools, reservations in private institutions is not per se violative of the basic structure. Thus, reservations as a concept cannot be ruled out in private institutions where education is imparted. They may not be the state or state instrumentalities, yet the value that they add is part of the national effort to develop skill and disseminate knowledge. These institutions, therefore, also constitute material resources of the community, in which the state has a vital interest and are not merely bodies set up to further private objective of their founders, unlike in the case of shareholders of the company. Therefore, I hold that on question number 2, the amendment is valid, but for reasons of answering question number 3, the amendment has to go. Before I sum up, I wish to address one point which the majority has dealt with, but more as a note of caution, because it is not necessary for me to deal with that aspect, which is the 50% cap. It is pertinent to note that the breach of the 50% limit is the principal ground of attack of the 76th Constitutional Amendment, 1994, which is inserted as entry 257A. The Tamil Nadu Backward Classes, Scheduled Caste and Scheduled Tribe Reservation of Seats in Educational Institutions under the State Act 1993. The validity of that enactment, whether the inclusion by the Constitutional Amendment violates the basic structure, is directly an issue in a batch of cases pending before this. और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता अनिल मोर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, देखिए आरक्षण नीति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण आज कोर्ट का ये 10% आरक्षण जारी रखने की बात कहना है, कितना फायदेमंद साबित होगा उन अगड़ी जातियों के लिए जो कि इस वक्त कह सकते हैं कि अपने भरण पोषण के लिए जद्दोजहद करती नजर आ रही है? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इस फैसले को हम एक ऐतिहासिक फैसला कह सकते हैं, क्योंकि देखिए जो आर्थिक आधार पर आरक्षण का फैसला दिया गया था, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमी वीकर सेक्शन को जो आरक्षण दिया गया था 10% नौकरियों में, उच्च शिक्षण संस्थानों में,
इस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुहर लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में जो 5 जजों की संवैधानिक पीठ थी, उसका फैसला आ गया है। फैसला लगातार पढ़ा जा रहा है। अभी तक जो फैसले की अगर बात करें, 5 जजों में से जो 4 जज हैं इस फैसले के पक्ष में है, वो ईडब्ल्यूएस के पक्ष में है। हालांकि जो एक जज थे, उनकी तरफ से इस फैसले पर कहीं ना कहीं इस आरक्षण पर अपनी असहमति जताई गई है। लेकिन जो संवैधानिक पीठ का फैसला है, मोटे तौर पर कहीं ना कहीं ईडब्ल्यूएस के पक्ष में है। और इस फैसले के साथ देश भर में जो 10% आरक्षण है ईडब्ल्यूएस को, वो जारी रहेगा। यानी जो भी अगड़ी जातियां हैं, जो गरीब सवर्ण है, उनको आरक्षण मिलता रहेगा। और जो फैसला सुनाया गया जो 5 जजों की संवैधानिक पीठ में, उसमें से जो ज्यादातर जज थे इस आरक्षण के पक्ष में थे। और कहीं ना कहीं कहा गया है कि जो आरक्षण है वो बरकरार रहेगा। जो 10% का आरक्षण है, चाहे सरकारी नौकरियां हो या शैक्षणिक संस्थान हो, उसमें जो गरीब स्वर्ण है उनको 10% जो आरक्षण है वो मिलता रहेगा। हालांकि जो जजमेंट है, जजमेंट लगातार पढ़ी जा रही है। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट है, उनकी तरफ से इस कहीं ना कहीं इस आरक्षण के को लेकर अपनी असहमति जताई गई है। हालांकि जो बाकी के जो जस्टिस थे, उनकी तरफ से कहीं ना कहीं ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर मुहर लगाई गई है। जी। अच्छा देखिए, माना ये भी जा रहा है अनिल कि आरक्षण को आर्थिक आधार पर दिए जाने की मांग उठती रहती थी, लेकिन अचानक से जातिगत आरक्षण को खत्म नहीं किया जा सकता था, इसीलिए बीच का रास्ता निकाला गया। और अब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि केंद्र की बीजेपी सरकार को इसमें एक सही मौका भी मिला है, क्योंकि 10% आरक्षण को कोर्ट ने भी सही ठहराया है। बिल्कुल, देखिए, जब ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया गया था, जब संविधान के 103वां संशोधन किया गया, 103वें संशोधन के तहत ये फैसला लिया गया था केंद्र सरकार की तरफ से कि जो गरीब स्वर्ण है, क्योंकि देखिए गरीबों को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। जो निचली जाति है देश भर में, उनको तो आरक्षण मिलता ही है, लेकिन जो गरीब स्वर्ण है उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। और इस फैसले के तहत, इस संशोधन के तहत फैसला लिया गया था कि जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिलेगा, चाहे नौकरी हो चाहे शैक्षणिक संस्थान हो। सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण का फैसला लिया गया था। लेकिन इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और कहा गया था कि जो फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है ईडब्ल्यूएस का, इस फैसले से कहीं ना कहीं जो दलित है, वो जो दूसरे जो पिछड़ी जाति है, वो कहीं ना कहीं आरक्षण का अपना पूरा लाभ नहीं ले पाएगी। लेकिन जो 5 जजों की संवैधानिक पीठ थी, वो लगातार अपना फैसला पढ़ रही है। वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 10% इस आरक्षण को अपनी हरी झंडी दिखा दी गई। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने हालांकि इस आरक्षण को लेकर अपनी असहमति जताई है, लेकिन जो बाकी जस्टिस थे वो कहीं ना कहीं इस पक्ष में थे कि जो ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण है वो मिलता रहना चाहिए। बिल्कुल, और अब हरी झंडी इस फैसले को मिलती नजर आ रही है। और एक काफी समय से मांग उठती जा रही थी कि आर्थिक आधार पर आरक्षण को और जातिगत को भी इसमें समन्वय स्थापित किया गया अनिल, क्योंकि जातीय आरक्षण को लेकर सवाल उठ रही थी कि जातीय आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, केवल आर्थिक आरक्षण रहेगा। उस लिहाज से इसे कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है? देखिए, जातिगत आरक्षण की बात करें, देश भर के तमाम राज्यों में, पूरे देश में जातिगत आरक्षण मिलता ही है। चाहे कोई ओबीसी वर्ग है, दलित वर्ग है, एससीबीसी है, इन तमाम वर्गों को आरक्षण मिलता ही रहता है। जो आपने बात कही है वो एक बड़ा विषय हो जाता है कि बाकी जातियों को आरक्षण को लेकर। लेकिन जो फिलहाल यहाँ पर जो एक चुनौती दी गई थी संशोधन को, चुनौती के तहत कहा गया था कि जो ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण दिया गया है, जो गरीब स्वर्ण है, जो इनको आरक्षण दिया गया है, इससे कहीं ना कहीं आरक्षण जो दूसरी पिछड़ी जाति है उनका जो आरक्षण है वो प्रभावित होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को नहीं माना कि इस आरक्षण से जो दूसरी जो पिछड़ी जाति है, जो रिजर्वेशन है, वो रिजर्वेशन प्रभावित नहीं होगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहना है कि ईडब्ल्यूएस को बरकरार रखने का फैसला लिया है। जो लगातार जो जस्टिस बैठे हुए 5 जजों की संवैधानिक पीठ से लगातार अपनी जो जजमेंट है वो जजमेंट पढ़ रही है। बिल्कुल एक ऐतिहासिक फैसला है कोर्ट का अनिल। और देखिए, लगातार इस फैसले को लेकर लगातार ये बातें भी सामने आती रही थी कि अन्य जो आरक्षण इससे पहले जातिगत आधार पर दिए गए हैं उस पर असर होगा, लेकिन अब ये भी तस्वीर साफ हो गई है कि अब से पहले दिए गए आरक्षण पर कोई असर नहीं होगा। इसको लेकर भी स्पष्ट कीजिए। देखिए, जो चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जो याचिका लगाई गई थी, उस याचिका के जरिए यही कहा गया था कि जो 103वां संशोधन किया गया था केंद्र सरकार की तरफ से, संविधान में जो संशोधन किया गया था, उसके तहत 10% आरक्षण का
प्रावधान किया गया था, ये जो 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था, ये ईडब्ल्यूएस के लिए जो आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं स्वर्ण जाति में, उनके लिए प्रावधान किया गया था। लेकिन जो याचिका जो मैंने आपको बताया कि जो याचिका लगाई गई थी, इस याचिका में कहा गया था कि जो ये आरक्षण मिलेगा, इस आरक्षण से जो दूसरा आरक्षण जो एससी बीसी ओबीसी आरक्षण मिलता है, जो रिजर्वेशन रहती है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी, जो कमजोर तबका है समाज का वो प्रभावित होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है जो लगातार पढ़ी जा रही है, अभी तक जो एक जस्टिस है उनकी तरफ से कहना कि असहमति जताई गई इस आरक्षण को लेकर, जो बाकी जस्टिस है वो लगातार इसके पक्ष में है। अभी तक जो जजमेंट पढ़ी जा रही है उसके तहत तो यही है कि जो 10% ईडब्ल्यूएस को आरक्षण वो जारी रहेगा। वो कहना कि इस आरक्षण से सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया है कि इस आरक्षण के लागू होने से, बरकरार रहने से, क्योंकि पहले से ये लागू है, इसके बरकरार रहने से जो दूसरी जातियों का जो आरक्षण है, जो पिछड़ी जातियों का आरक्षण है, उस पर कहीं ना कहीं कोई असर नहीं पड़ेगा फिलहाल तक तो। क्योंकि देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट मान चुका कि जो ईडब्ल्यूएस को लेकर जो संशोधन किया गया था संविधान में, जो 10% आरक्षण दिया गया था गरीब लोगों को जो स्वर्ण जाति में आते हैं, कहीं ना कहीं इस आरक्षण से जो दूसरा आरक्षण है वो कतई प्रभावित नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई। तो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 103वें संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुनाया है। और अब देखिए, जो तस्वीर बनी है वो आपको बता दें, 4 जज पक्ष में है, 1 विपक्ष में है। इस फैसले के ईवीएस कोटे के तहत 10% आरक्षण दिया जाएगा। ये वो कोटा होगा जिसमें स्वर्ण वर्ग के ऐसे लोग जो आर्थिक तौर पर कमजोर हैं, जिन्हें मदद की जरूरत है, उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। इसके प्रावधान क्या होंगे, इसको लेकर सवाल कायम है। तो इसको लेकर भी कुछ खास जानकारियां हैं, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर एक सरसरी निगाह दौड़ानी बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि ये जो लाभ उठाने का प्रावधान होगा, ईवीएस में क्या मापदंड होंगे, उसको लेकर भी कुछ जानकारियां फिलहाल सामने आई हैं। आवासीय समतल क्षेत्र 1000 वर्ग फुट होना चाहिए। परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक अगर कृषि भूमि होगी तो आरक्षण नहीं मिलेगा। गैर अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र में 200 वर्ग गज से कम अगर मकान है तभी इसका फायदा मिलेगा, और 100 वर्ग गज से कम अगर नगर पालिका क्षेत्र में आवासीय मकान है तब इसका फायदा मिलेगा। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने होंगे। ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ लेने के लिए प्रमाण पत्र की जरूरत होगी, ये बनवाने होंगे। और लगातार इस 10% आरक्षण को लेकर सवाल उठते रखे थे, कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज एक तरफ तो 10% आरक्षण पर मोहर लगा दी है, दूसरी तरफ उन तमाम सवालों पर भी एक तरह से विराम लगा दिया है जो उठाए गए थे। कहा यह जा रहा था कि अब से पहले जिन जातियों को आरक्षण मिला है उनके आरक्षण को काटकर ये 10% आरक्षण दिया जाएगा। अब इसमें खास बात यह है कि लगातार ये सवाल उठते रखे थे कि क्या अन्य आरक्षणों को खत्म किया जा रहा है, केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण रखेगा। तो फिलहाल ऐसी कोई तस्वीर बनती नजर नहीं आ रही है। आरक्षण दिया जरूर जा रहा है लेकिन किसी का आरक्षण छीना नहीं जा रहा, ये तस्वीर साफ करनी बहुत जरूरी थी। तो ये अब तस्वीर पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है। Society that are socially and educationally backward and are subjected to caste discrimination. For these reasons, Articles 15(6) and 16(6) are struck down and held to be violative of the Equality Code, particularly the principles of non-discrimination and non-exclusion, which form an inextricable part of the basic structure of the Constitution. While this reasoning is sufficient to conclude that Article 16(6) is liable to be struck down, there are additional reasons elaborated in Part 5, due to which this court is compelled to clarify that while the economic criteria per se is permissible in relation to access to public goods under Article 15, the same is not true of Article 16, the goal of which is empowerment through representation of the community. For the above reasons, it is hereby declared that Sections 2 and 3 of the Constitution 103rd Amendment Act 2019, which inserted Clause 6 in Article 15 and Clause 6 in Article 16 respectively, are unconstitutional and void on the ground that they are violative of the basic structure of the Constitution. The writ petitions are consequently disposed of. It would be in order to place my gratitude and appreciation for the valuable assistance rendered by all counsel and all the counsel assisting them